Vish, we can't hear you. Hi, sorry, I was speaking on mute. So, uh, good evening, everyone. Good to see you all on a Friday evening. I know, thank God, it's Friday. Uh, my name is Avish. I'm a coach with the Wellness Coaching community, and I wanted to take this opportunity to bring out Sahil. He has done an amazing job on his health, and he has been someone who has worked on it. Yeah, who has been working on his health since his college days, for more than I think 15 years. And I would like to bring over Sahil to share more tidbits about the same. Hi, Sahil. Can you introduce yourself? Hey, Vish, thanks for having me. Sure, definitely. Hey, this is Sahil. So I come from a normal middle class family. Did my schooling and then fast forward my college. Been a gym buff all my life, and I'm currently staying in Bangalore from past 10 years. And I'm primarily a software engineer. I work with Tesco, and I also help people with their transformation journeys. Thanks for having me. Absolutely awesome, Sahil. So proud of you for being here. I know just to make it here, it takes a lot of transformation to make it happen. And I'm absolutely proud of you. Kyunki I don't get a chance to take interviews for every person who gets on the journey because reaching here in itself is a big feat. And I'm so glad you could achieve it and so proud of you. I can see your parents here. I can see your wife here. I'm sure they would be extremely proud of you as well. So, Sahil, let's start with maybe can you list out ki aap, so I think it's been mota mota 6 months since you have started the journey. तो कहाँ पर थे before you started the journey? What were the problems that, you know, why did you join the journey? I know you started with weight loss. But apart from weight loss, what are the things that came in handy कि ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया? And what were those issues that used to happen earlier, and where are you now? Sure. So yeah, everyone just starts with weight loss, right? But for me, major concern क्या था ना कि I used to started having sinus issues. So Bangalore का weather is always like कि temperature 10 डिग्री ऊपर नीचे रहेगा, right? So with that, it brought in such severe headaches with sinus कि problem होने लग गई थी. So it had become very difficult for me as and when जैसे ही मौसम बदलता था. I used to have very low immunity. I used to go out for partying with my friends in the night. Next day पूरे दिन मेरे को headache रहता था and there were a lot of sinus issues, nose blockages रहते थे. अब मान लो there was one particular time in a year जिस दिन मैंने सब आप सोच लो सब्सक्रिप्शन ले रखी थी मैंने एजिथ्रोमाइसिन की 12 के 12 महीने एजिथ्रोमाइसिन खाई है मैंने तरीके से. एंड देन इट वाज समथिंग कि यार ये तो कुछ सही नहीं हो रहा है. देन ऑन टॉप ऑफ इट आई वाज फुल जिम बफ, राइट? तो धीरे धीरे चीज़ें करते करते मेरे को जॉइंट पेन्स होने लग गए. देन प्रॉब्ली देर वर आई वाज आल्सो रिकमेंडेड कि पेन इतना ज़्यादा है तो ड्रग्स ले लो, स्टेरॉइड्स ले लो. स्टेरॉइडल इंजेक्शंस वर प्रिस्क्राइब्ड. एंड देन आई फाउंड दैट सेम चीज़ें करते करते वेट लॉस भी रुक गया था, वेट लॉस हो ही नहीं रहा था. सो देर वॉज अ टाइम जब जब एक बंदा 1 1 घंटा 1 1 1 घंटा जिम में स्पेंड कर रहा है बट ही इज़ वेइंग अराउंड 80 82 kgs. या फिर ऐसे होता था कि वेट लॉस हो जाएगा, मर खप के वेट लॉस कर लो और फिर बाद में एनर्जी लो हो जाती थी, बॉडी पेन्स हो जाते थे, बहुत सारा न्यूट्रिशन लॉस हो जाता था. दिख के आता था कि यार अब तो मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट आई यूज टू फील दैट आई एम हेल्दी. अंदर से हेल्दी फील नहीं होता था, राइट? सो दैट वाज वेयर आई स्टार्टेड विद. So, एंड just to put it into perspective, so you told me कि azithromycin का subscription ले रखा था 12 महीने का. There were bad sinus issues, especially given the Bangalore weather. यस. It used to be very hectic. You have always been someone who doesn't skip gym. तो वर्कआउट का प्रॉब्लम नहीं था, वर्कआउट कितना भी करा लो, बट वर्कआउट के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे थे, प्रोबेबली ड्यू टू द अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट करेक्ट. एंड जॉइंट पेन्स होने लगे थे जहां पर हमें स्टीरॉइड्स रिकमेंड किया गया था. एंड सिर दर्द, टायर्डनेस, दीज वर अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. करेक्ट करेक्ट या. ओके, वेयर आर यू नाउ साहिल? कहाँ पर पहुंचे हो? व्हाट इज हैपनिंग विद योर लाइफ राइट नाउ?
It's taken a turn for the good. So it all started 6 7 months back when we met, right? I was doing all the gym related things and probably even recommended on keto diets by so-called popular fitness coaches like. एंड आप नाम लीजिए, मतलब मैंने हर एक फिटनेस कोच ट्राई किया अपनी जिंदगी में, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता। सो वो रिजल्ट नहीं आया इन द एंड वेयर आई एम एट राइट नाउ। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू शेयर दैट कि बॉडी पेन्स बिल्कुल गायब है, ठीक है। नाउ आई नो कि कितना वर्कआउट करना है, कितना मेरे लिए सही है, कितना बॉडी अडेप्ट कर पा रही है, राइट। साइनस गायब है मेरा बिल्कुल, लाइक इट डजंट कम। मतलब अब मेरे को थ्रोट इन्फेक्शंस तक नहीं होते हैं। आई सी पीपल इन एंड अराउंड माई ऑफिस गेटिंग सिक and I don't fall sick. Even if I'm falling sick, I have that magic potion with me. हल्दी का काढ़ा मैं पी लेता हूँ, पॉपुलराइज करता हूँ उसको बहुत जब भी मेरे को मौका मिलता है। एंड या प्रिटी मच फुल ऑन एनर्जी रहती है। ऐसा नहीं है रात को 11 बजे भी अगर आप, पहले ऐसा होता था कि 11 बजे है तो मतलब साहिल सोया मिलेगा। आई डू फील टायर्ड कि नींद आ रही है बिकॉज सर्केडियन रिदम सही सही हो गई है, बट एनर्जी रहती है बहुत ज़्यादा। एंड वेट लॉस तो मेरे को लग रहा है बाय प्रोडक्ट है लिटरली कि आई फील हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। आई फील देर इज अ नेचुरल ग्लो। अपना बॉडी डिटॉक्स हुई है अच्छे से, गट क्लीन रहता है। कुछ भी उल्टा सीधा खा लेता हूँ तो बॉडी रिएक्ट्स, वो सारी चीज़ें समझ पा रही है, इट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। So, all in all, those things have happened and lost close to, I'll say, 8 to 9 kgs in the process and still counting. एंड जब मेरे को बोला गया था कि स्टेरॉइडल इंजेक्शन लेना पड़ेगा उसके, दैट बेसिकली अकाउंट्स फॉर कि आपके जॉइंट स्टिफ हो रहे हैं। कटिंग फ्रॉम दैट, आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर अ हाफ मैराथन राइट नाउ विच इज माई गोल इन September 2025. So yeah, living a pain free life and making the best of it. Awesome, absolutely. How you are from Shimla, right? So a few months back you were in Shimla. How often did you get sick? आपका साइनस कैसा था? Were you able to manage it? उस Okay, maybe I'll get a scolding from you afterwards on this, but yeah, before going to Shimla, me and my parents, they went to Prayagraj. We had our housewarming ceremony. That's why they were here in Bangalore with us. And उस एक महीने मैं और मेरी मम्मी ने दब के कचौरियाँ खाई हैं। डेली रात को एक कचौरी ऑर्डर होती थी। ठीक है। उसके बाद हम लोग व्हेन वी वेंट टू प्रयागराज, तो प्रयागराज में भी लिटरली खाना तो यूर ईटिंग आउट, राइट। एंड एक महीने से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं हो रहा है तो वेट गेन होना चाहिए था, बीमार होना चाहिए था मैं। वहां पे जाके गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद खाना भी अच्छा नहीं खा रहे हो, मतलब टाइम पे नहीं खा रहे हो, लाइक बाहर का खाना खा रहे हो। आई शुड हैव फॉलन सिक। इतनी देर में तो यार पेट खराब हो जाता है, बीमार हो जाता हूँ, बुखार हो जाता है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड इस बार। एंड वेट नहीं बढ़ा, एनर्जी नहीं डिप हुई। सो इट वॉज जस्ट वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर मी। एंड जब मैं वापस आया, वेट मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं बढ़ा, देर वर फ्लक्चुएशंस, बट 73 अगर वेट है, 73.5 हो जाएगा। अगले दिन, अगले 1 2 दिन तक आप सही कर लोगे तो फिर 73 आ जाएगा। एंड आफ्टर कमिंग बैक मैंने मुश्किल से एक हफ्ता फॉलो किया ढंग से अपना रूटीन, जो भी खाना पीने का है सारा, ईटिंग द राइट पैटर्न, it used to come back to normal. And it was so astonishing for me कि भाई the body is actually taking care for me. I just don't have to take care of it endlessly, and that was a very magical experience for me. एब्सोल्युटली, सो द टेक अवे इज कि उससे पहले साहिल ने लंबे टाइम तक अपनी हेल्थ पे काम किया था टू रीच अ प्लेस। ऐसा नहीं था कि एक हफ्ते हेल्थ पे काम किया और फिर 15 दिन की छुट्टी पे चला गया और सब कुछ ठीक था। एक्चुअली ही वर्कड ऑन हिज हेल्थ इन द राइट वे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट जब वो अपनी हेल्थ पे काम नहीं कर पा रहा था, हिज हेल्थ कुड टेक केयर ऑफ हिम। एंड इट शुड बी अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने हमारी हेल्थ पे काम नहीं किया, तबियत खराब हो जाएगी, कल हेल्थ पे काम करेंगे तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू साहिल। क्या दाल चावल छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी? मतलब वर यू ईटिंग होममेड फूड? डू यू हैव टू गो completely ऑफ कार्ब्स, या सिर्फ पनीर, प्रोटीन, दाल, सिर्फ इसी के खा रहे हैं? एंड यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, स्टीरॉइड्स। हाउ हैज इट बीन फॉर यू? घर का खाना खाने को मिल रहा था, भूखा रहना पड़ रहा था? क्या बात कर रहे हैं यार, मैं ज्यादा खा रहा था। आई वॉज जस्ट ईटिंग इन द राइट क्वांटिटी, मतलब जितनी भूख लगती थी उतना खा रहा था। देयर वर फ्यू कार्डिनल रूल्स दैट आई लिव्ड बाय।
एंड दैट आर एक्चुअली माई टेक अवेज फ्रॉम दिस लाइफ स्टाइल एज वेल कि आप आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे काम करके हेल्थ को अचीव नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट दैट यू विल जस्ट डू मूवमेंट, या फिर आप सिर्फ खाना सही कर लोगे, या फिर आप सिर्फ टाइम पे सो जाओगे रात को, या फिर आप केवल स्ट्रेस नहीं लोगे, या फिर आप केवल अपनी बॉडी को डिटॉक्स करोगे और अगले दिन कुछ भी खाओगे। ठीक है। सो व्हाट आई डिड देयर वाज सारी चीजें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव की, राइट? एंड इवन 1% improving on any of those, it helped, it went in a very good direction, is what I will say. सो So yeah, go यू आर ahead. सेइंग कि अगर ये गाड़ी के चार पहिए पहिए हैं और एक पूरा पंक्चर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, पर पांचों में से 5-5% हवा बाहर निकाल देंगे तो भी गाड़ी चलेगी। बट Right. इट हैज टू बी वर्कड ऑन ऑल द पिलर्स। 5-5% सब पे काम करेंगे तो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन वन थिंग एंड स्क्रूइंग अप ऑल द अदर्स। Correct, correct. Absolutely. So, Sahil, tell me this. You have always been into fitness, right? Uh, College times, I think you're working on your gym, right? Many of the people So, here will know. absolutely. So, what changed? You were doing gym that time, and you had an amazing physique, and फिर उसके बीच में life happened, work happened, you gained the weight, you went back to gym, but you didn't get the same results that you got in college. Why? What happened, and what changed? Correct. So probably initially you will feel कि like you will feel कि college के बाद बाहर आने के बाद you should be getting the same results. I tried for a long time, मतलब मेरे को लगता है वो गैप काफी ज्यादा बड़ा हो गया था मेरे लिए। I had quit gym for good enough, like 4-5 साल के लिए जिम नहीं गया था because the lifestyle had become like that. So उसके बाद even you work out the same way, same quantity of things you do, it was not happening in the right direction. So I was just focusing on one thing. I had taken instructors, I had taken the most expensive of the instructors. They were guiding me in just one particular area. ऐसा लग रहा था कि बॉडी ना श्रिंक हो रही है, बट अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है। लाइक probably you can see the change, and as soon as you stop, the result stops. सो कुछ तो ऐसा लग रहा था कि मतलब पहले लाइक मे बी द एज वॉज डिफरेंट, द टाइम वॉज डिफरेंट, द एनर्जी लेवल्स वर डिफरेंट, एंड द लाइफ स्टाइल हैड कम्प्लीटली चेंज्ड। ईटिंग आउटसाइड एंड ईटिंग एट एनी पर्टिकुलर टाइम, इट हैड स्क्रूड अप बैडली। एंड उसकी ही वजह से इज व्हाट आई फील कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इवन इवन आई वाज ट्राइंग टू डू इट इन द राइट वे। सप्लीमेंट्स के, अब मान लो यार कि एक पर्टिकुलर ट्रेनर के पास, किसी के पास भी जाता था तो वो पहले सिर्फ प्रोटीन तो लेना ही लेना था, ठीक है। देर वर 10 डिफरेंट सप्लीमेंट्स। जैसे चलो बेसिक आई गेट इट, ओमेगा 3 B12 आर नॉर्मल। उसके अलावा मैग्नीशियम भी खाना है, सेलिनियम भी खाना है, जिंक भी खाना है, अपना 10 तरीके की और गोलियां खानी है, अश्वगंधा खा लो, शिलाजीत खा लो। 10 तरीके की चीज़ें ऑलरेडी वो लोग स्टैक कर देंगे, एंड उसके बाद जब चीज़ें सही नहीं, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तब बोलेंगे यार why don't you like you practice so much good, why don't you start on steroids? तो भाई पागल हो क्या यार, लाइक आई हैव नॉट डन दिस एंटायर लाइफ। कॉलेज में करना होता तो कर लेता यार, लाइक why will I go in that direction? And coming from a background of fitness, I do understand कि इन सब चीज़ों के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। I am also very well aware of the मैजिक पिल्स दैट पीपल सेल आउट देयर, जिनसे आपका मेटाबॉलिज्म तो बढ़ जाता है, पर जैसे ही आप छोड़ते हो उसके बाद आपको इतनी क्रोनिक इश्यूज होते हैं। सो आई एम अवेयर ऑफ दैट। सो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा अवॉइड कर पाया इन चीज़ों को। Awesome, exactly. So, what are the so we didn't work on weight loss, है ना? मतलब weight loss was the final goal, but we never worked on weight loss. What did you work on? मतलब क्या improvement? Basically, what were the things that you, in your case, worked on जिससे आपको results मिले that you are here today? करेक्ट। सो एसेंशली क्या होता है ना विश, कि हम लोग ना ये सोचते हैं कि हम लोगों को रिजल्ट्स जल्दी आने चाहिए। उससे पहले हम लोगों की आदतें सीमेंट नहीं हो पाती हैं, राइट? वी आर नॉट एबल टू बिल्ड हेल्दी हैबिट्स। ठीक है। एंड हेल्दी हैबिट्स, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस इवन इन माय माइक्रो कम्युनिटी अभी, कि हैबिट बिल्डिंग पे फोकस करके अगर आप चीज़ों को करोगे, सो बेसिकली दोज थिंग्स विल लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप see the result of going to a gym, you won't get it immediately, right? You won't be able to follow all those things to the nail. But
उन चीज़ों को करते रहना ज़रूरी है, उन चीज़ों को, एंड एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर करना ज़रूरी है, जिससे एक वॉच रहे चीज़ों के ऊपर कि चलो अब आपका प्लेटो हिट हो गया है, तो अब आपको थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट करना है, या फिर बेसिकली आप हाथ पैर मारते रह सकते हो टिल द टाइम आप सही दिशा में हाथ पैर मार रहे हो, जो एक पता करने वाला इंसान है, दैट इज व्हेन यू विल रीच योर गोल्स. एंड probably there has to be balance. That's the biggest learning that I've had. Absolutely. So, Sahil worked on his gut health big time. Sahil worked on his liver health. Sahil worked on his inflammation. एंड जब ये सारी चीजें रिजॉल्व होने लगी, अपने आप वेट लॉस भी होने लगा, अपने आप इंच लॉस भी होने लगा. पहले महीने बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं था बिकॉज बेस खराब हो रखा था. तो वी डिडंट फोकस ऑन अ लॉट ऑफ वर्कआउट, वी डिडंट फोकस ऑन अ लॉट ऑफ फूड. वी वर्कड ऑन गेट गट हेल्थ कि ठीक है, पहले जो भी जा रहा है उसे पचाने का शुरू करते हैं. फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन पे काम करा कि ठीक है, जो खाना जा रहा है उसकी वजह से बॉडी में सूजना नहीं चाहिए, हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. उसके बाद जो भी अंदर पड़ा हुआ है उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, तो लिवर हेल्थ पे काम किया. एंड once these started improving and reach to a particular level, after that weight loss was just a byproduct. And is that right, Sahil? Is that what you think we worked on? या एसेंशियली मैं बोल रहा हूँ मैं कम ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खा रहा हूँ, मेरी मसल ज्यादा बिल्ड हो रही है यार. I can Exactly. sustain with 50 grams of protein and I can still get a good muscle mass. So that is one of the biggest magics that I've seen. And yeah, definitely, uh, I actually am in utter question to all the people जो बोलते हैं कि 190 ग्राम प्रोटीन खाना ही है. तुम पचा पाओगे उतना? वो भी तो देखो. You're not able to digest those things. And also, I've gotten this a lot of times about कितने का प्लान है, कितना महंगा था, वाई आर यू टेकिंग सच एन एक्सपेंसिव प्लान. सो मैं यही सोचता हूँ हमेशा यार, लाइक देर वर टाइम्स जब मैंने 3,000 का जिम ले रखा था, ठीक है. 2,000 रुपये का मैं डाइट प्लान लेता था एक बार, 1 महीने का, ठीक है. किसी इंसान से लो, 1 महीने का होता है. 2 महीने तक आप करो उस चीज़ को, आपने 10,000 रुपये डुबा दिए, ठीक है. 10,000 रुपये डुबाने के बाद आपको रिजल्ट भी नहीं मिला. उससे अच्छा इफ यू एड सम मोर अमाउंट टू इट, एंड उसके बाद आपको एक लाइफ लास्टिंग रिजल्ट है, एक लर्निंग मिल गई है, तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छा है. मतलब यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन दैट, इन लर्निंग. सो दैट दैट इज लाइक अ आई ओपनर फॉर मी. यू शुड नॉट स्पेंड ऑन जस्ट मेकिंग दैट कि कोई और इंसान आपको फिट बनाए. यू शुड एक्चुअली इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, सो दैट आप खुद से सीख सको कि आपकी लाइफस्टाइल के लिए क्या सही है, एंड देन यू कैन फॉलो दैट फॉर योर लाइफ टाइम. दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग. So I would like to ask you a very, very, very interesting question here. आपकी यू स्टे विथ योर वाइफ राइट? मतलब अलग अलग घर में नहीं रहते हो, सेम शहर में रहते हो, सेम घर में रहते हो. यू गाइस लाइक ईच अदर, यू गाइस लव ईच अदर, राइट? यस, यस. ओके. सो शी वाज ऑलरेडी ऑन द प्रोग्राम, है या ना? यू स्टार्टेड आफ्टर हर, व्हाई डिड यू नॉट टेक, मतलब जो भी वो कर रही है मैं भी वही कर लूंगा, व्हाई डिड यू नॉट डू दैट? मतलब अलग से पैसा क्यों लगाया था? मतलब बीवी करे, मेरा फ्री में हो जाना चाहिए, व्हाई डू आई पुट इन नेक्स्ट? Right. So essentially, I got to understand this thing very early, that everyone's body type is different. जो सेम खाना उसको किसी पर्टिकुलर तरीके में पच के डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है, मेरे को हो सकता है दे या ना दे. सेम सीक्वेंस ऑफ फूड्स मैं अगर खाऊंगा, मे बी मेरी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करेगी. मे बी मैं ग्लूटेन इंटॉलरेंट हूँ यार, मे बी वो नहीं है. वो आलू का पराठा खा सकती है, मैं नहीं खा सकता. राइट. एंड देर आर थिंग्स की जिससे उसका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, मैं आराम से खा सकता हूँ. So that is why I feel health is very very personal to everyone. We can obviously try कि क्योंकि एक पर्टिकुलर फैमिली में एक हेल्थ प्रोग्राम अगर चल रहा है, तो कैसे चीज़ें मैक्सिमम सेम रखी जाएं. बट देर आर दोज caveats ऑलवेज दैट आर वेरी पर्सनल टू एवरीवन. सो आई डिड फील दैट कि उस चीज़ की ज़रूरत है, एंड दैट डिड पे ऑफ. And seriously, if there are times when I had followed things like that, जैसा आपने बोला कि कोई कर रहा है करके देख लो, कुछ और ही अलग रिजल्ट मिलता था. So I had those first hand. There are people who had been to different platforms, बढ़िया रिजल्ट आता है, एंड देन सेम चीज दूसरे इंसान फॉलो करो, तो इसको कैसे ये रिजल्ट आ रहा है. वी विल थिंक कि किसी इंसान का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वही फॉलो सेम चीज करके देखते हैं, आना चाहिए. बट इट डजेंट वर्क दैट वेज.
You actually bring up a very interesting point. I have a few questions. These are the questions that I usually get. ठीक है? Uh, what are the principles that you learn during this transformation journey of yours that you will take for your life? And when you know you will take your for your life, your weight won't come back, your problems won't come back. What are those principles? मोटा मोटा क्या सीखा है आपने? Right. So, first thing I guess we discussed just some time back, there are five cardinal rules that I believe. Uh, चार पहिए नहीं, पांच पहिए हैं, ठीक है? तो द फर्स्ट वन बीइंग ईटिंग राइट. ईटिंग राइट डजंट मीन कि मैदा बुरा है या फिर ग्लूटन बुरा है. आपको सूट होता है तो आपके लिए अच्छा है. सो वट एवर सूट्स यू इज गुड फॉर यू. यू शुड बी पुटिंग ओनली दैट इन योर बॉडी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वट सूट्स यू. ठीक है. सेकेंड थिंग इज योर स्लीप. स्लीप क्वांटिटी नहीं, स्लीप क्वालिटी. नींद अच्छी आनी चाहिए, जब भी उठो तो फ्रेश उठने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 8 घंटे भी सो लिए, 10 घंटे भी सो लिए, उसके बाद उठे तो ग्रॉगी उठ रहे हो. दैट डजेंट वर्क. जब तक स्लीप क्वालिटी बढ़िया हो रही है धीरे धीरे, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. थर्ड थिंग इज कि आपको स्ट्रेस, स्ट्रेस इज अ बिग वन, राइट? देर इज नो एस्केपिंग इट. स्ट्रेस आएगा ही. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि कैसे डील करना है स्ट्रेस से. यार मेरी भी मीटिंग्स रहती हैं लंबी लंबी, मेरे के पास भी वर्क प्रेशर्स रहते हैं. Being a software developer, work pressure is a part of your life. There will be nth hour deliveries. But what do you do after that? How do you deal with it? उसके बाद भी अच्छी नींद कैसे आए? How do you keep your temper in control? All those things, all those practices are really important. And all these things need to happen together, right? And then the fourth thing is movement. Movement तो यार मतलब it's not a big thing for me, but it doesn't mean कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही सबको करना है. ठीक है. द ओनली थिंग इज कि मैंने मैंने अपना वर्कआउट एक्चुअली कम किया, बिकॉज मैं ज़्यादा कर रहा था. इट वॉज नॉट सूटिंग मी. सो वट एवर सूट्स यू, इफ वॉकिंग सूट्स यू, इट शुड बी वॉकिंग. वट एवर यू आर डूइंग, मे बी देर आर पीपल हु जस्ट डोंट इवन वॉक, तो उनके लिए वो एक मूवमेंट हो जाएगा. ठीक है. द लास्ट थिंग दैट आई फील इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के दिन में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, राइट? सो डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. You know, as soon as I got on this health transformation journey of mine, so there was this thing that key toxins, there are a lot of toxins in your home, let us do a complete overhaul. मैं अपने किचन का पूरा टॉक्सिन सर्वे किया, removed all the toxic things from there. There is no non-stick item in my kitchen. There is no probably. I try to remove plastics. We are in the process of removing plastics also. Pressure cooking बिल्कुल बंद है, because it is actually basically not, it eats up all the nutrition of your food. And I've been doing all those things, and trust me, these small changes, खाना उसी स्पीड पे बनेगा, खाने का टाइम उतना ही रहेगा, आपको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा. वी शिफ्टेड टू ऑर्गेनिक. आई वाज जस्ट listening to this survey, going through the survey wherein organic food versus the normal food, a tomato, if you're having an organic tomato versus a normal tomato, you will be having 9 times more the iron from an organic tomato. So sustainable things, धीरे छोटी छोटी चीजें चेंज की, एंड दीज आर द फाइव कार्डिनल रूल्स दैट आई लिव बाय. एंड दीज आर थिंग्स जो धीरे धीरे मतलब स्टे विद मी. मैं बाहर भी जाता हूँ, सो आई लुक आउट फॉर ईटिंग राइस, आई डोंट लुक आउट फॉर ईटिंग रोटी. नहीं सूट करती है मेरे को. आई ट्राई एंड फाइंड कि बफे में सबसे पहले सब्जियां कहाँ मिलेंगी मेरे को. सो या, दैट इज व्हाट आई लिव बाय. ठीक है. सो just for the knowledge of everyone, Sahil is coming from a place जहाँ पर he would eat but पेट नहीं भरता था, मन नहीं भरता था. He could राइट. eat as much as he wanted and फिर भी ऐसा लगता था कि थोड़ा सा और तो खा ही सकता हूँ, because somehow the nutrition wasn't getting into his body. Now he has reached to a place जहाँ पर he is getting more nutritious food. और ऐसा नहीं है कि he doesn't eat कचौड़ी anymore. He does. Just that छोटे से उसका काम हो जाता है. He doesn't need four of those. So there are some more principles that he followed. First, he worked on building habits, right? बेसिकली छोटी छोटी चीजों को जब आप लंबे टाइम तक करते हैं, रिजल्ट्स वहीं पे आते हैं. लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, डिसिप्लिन नहीं रहता है.
तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इसलिए नहीं रहता बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग दैट डजंट वर्क फॉर यू, या फिर हमने गूगल से डाइट निकाला है, डाइटिशियन से एक डाइट लिया, या यू नो यू गो टू योर फ्रेंड टेक अ डाइट, यू डोंट नो इफ इट इज वर्किंग फॉर यू। तो कई बार डाउट आ जाता है कि शायद काम कर रहा है नहीं कर रहा, बिकॉज वी वांट टू सी द रिजल्ट्स इन द फर्स्ट वीक। मे बी इट इज गुड फॉर यू, बट नो वन इज देयर टू टेल यू इट इज फॉर यू, एंड मे बी इट इज नॉट गुड फॉर यू एंड नो वन इज स्टिल देयर टू टेल यू कि इट इज नॉट फॉर यू, डोंट डू इट, डू समथिंग एल्स। तो क्योंकि हम उस जेनेरिक और टिप्स माइंडसेट से ज्यादातर लोगों के पास आते हैं, तो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट इफ इट इज गुड फॉर मी एंड इफ इट इज नॉट गुड फॉर मी। फिर हम अपने आप को बोलते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं है। अरे नहीं, आप कंसिस्टेंट हो, जस्ट दैट आप गलत चीज पे शायद कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर आपको पता भी नहीं है कि कंसिस्टेंसी काम करेगी कि नहीं करेगी, राइट। दूसरा, इट्स लाइक वर्क फ्रॉम होम डाइट कल्चर जो जो अभी चल रहा है कि आप हमें वीडियो से, तो आप हमें मतलब अज्यूम करो कि एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा बोलता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरे पास टीचर ने सारी रिकॉर्डिंग्स भेज दिया है, मेरे पास मैथ्स की बुक है, मैं अपने आप पढ़ के सब कुछ कर लूंगा। व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग विद दैट? लेट मी आस्क यू साहिल, व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट बाय द किड? क्यों उसे स्कूल जाने की जरूरत है जब उसके पास सारा मटेरियल है, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, उसके पास सारे वीडियोस है? व्हाई डू यू थिंक ही स्टिल नीड्स टू गो टू द स्कूल? क्यूरोसिटी तो गई ना, यू कांट आस्क द क्वेश्चंस, यू कांट, लर्निंग कांट हैपन विदाउट क्वेश्चनिंग। Absolutely. Learning can't happen. You इफ यू वांट टू फिगर आउट समथिंग न्यू, आपके पास अगर एक और मेथड है, तो आपको वो कौन बताएगा कि ये मेथड बहुत अच्छा है, और या फिर ये मेथड बिल्कुल सही नहीं है? या फिर आप एक मेथड को दूसरे मेथड में लगाने की कोशिश करोगे, तो नो वन विल टेल यू कि वो सही मेथड है, वो गलत मेथड है, वो काम करेगा, वो नहीं करेगा। सो व्हाट इज, मतलब आप वीडियो से सिर्फ वही सीख सकते हो जो सबके लिए सत्य है। आपके लिए सच है कि नहीं है, यू डोंट नो। You can't learn more than what is being taught. You can't ask questions. You can't create habits in a work from home setting. And that's why you have to show up every single day. You don't get motivation. ऐसा हमें पता नहीं होता कि जब पहले 15 दिन हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो बाकी लोगों के आ रहे कि नहीं आ रहे। और अगर किसी और के नहीं आ रहे, तो क्या पता कोई 3 महीने कर चुका है जिसके पहले 15 दिन रिजल्ट नहीं आए थे। तो आप जब उसकी, सो इन अ कम्युनिटी सेटिंग, एवरी सैटरडे वी ऑल कम टुगेदर एंड वी एक्चुअली, जैसे आज साहिल का इंटरव्यू ले रहा हूँ, वहां पर वी ऑल्सो टेक सम इंटरव्यूज ऑफ पीपल हु हैव गॉन थ्रू अ जर्नी जहां पर दे हैड लिमिटेशंस। सो यू गेट टू सी अदर पीपल लाइक योर सेल्फ एंड यू गेट मोटिवेटेड कि ठीक है, उसका हुआ, मेरा भी हो सकता है। वो भी नॉर्मल इंसान है, वो सुपरमैन नहीं है, उसने कोई ऐसा 30 मार का काम नहीं किया था जो मैं नहीं कर सकता, राइट। सो सो दैट इज व्हाट अ कोचिंग फॉर योर सेल्फ लुक्स लाइक। ठीक है, सो a few things that you did differently, like you maintain the sequence, you listen to your body clock. Uh, do you want to talk about that? How did it work out for you, and why do you think it worked out for you? So yeah, basically, very a thing that I'd forgotten to talk about. Thanks for bringing it up. But yeah, essentially, we all know कि यार फ्रूट सुबह खाना है, खा लो। उससे उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद मैं वॉलनट्स खा लूंगा, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देर इज सर्टन सीक्वेंस जिसमें आप खाओगे तो न्यूट्रिशन ज़्यादा आएगा बॉडी में, राइट? आई बीन ट्राइंग टू डू अ सर्टन सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, एंड आई हैव मेड देम सो बोरिंग, सो मोनोटोनस, कि वो इतनी ऑटोमेटिक हो गई हैं दैट दे आर एज गुड एज एनीवन आस्किंग मी आज ब्रश छोड़ दे, रहने दे यार, दे आर विद मी, मैं करूंगा ही वो चीज़ें, राइट? सो सीक्वेंसिंग मैटर्स, कितने बजे तक खा रहे हो। ईटिंग विद द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉलोड। 7 बजे के बाद नहीं खाता मैं। इवन इफ आई गो ऑन अ पार्टी एनीवेयर, आई ट्राई कि यार कुछ ना कुछ बहला फुसला के सैलेड खा के मैं काम चला लूं। आई डोंट ईट रॉ आफ्टर सनसेट, नहीं पछता बॉडी में। सो वेरी फ्यू थिंग्स दैट आई डू, बट देर आर सर्टन सिचुएशंस जब जहाँ पे आपको जाना ही पड़ता है, लाइक यू गो ऑन ऑफिस पार्टीज, ठीक है, वहां पे तो आपको खाना ही पड़ेगा। सो देयर व्हाट आई मेक श्योर इज आई एम हैविंग अ बिग सर्विंग ऑफ सैलेड बिफोर माई फूड, एंड बी दैट देयर आर पीपल इन माई ऑफिस हु लुक आउट एट माई प्लेट कि मैं पहले क्या खा रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि हम सब का तो वजन बढ़ जाएगा, कल इसका नहीं बढ़ने वाला। सो दैट्स व्हाट हेल्प्स।
Absolutely. तो सो यू हैव अ फुल टाइम जॉब, राइट? ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे रहते हो, पूरे दिन वर्कआउट कर लूंगा, पूरे दिन सिर्फ अपने खाने का ध्यान रख लूंगा, एंड मतलब दिस इज एंड बहुत बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ, यू डोंट हैव टू वर्क टू गेट मनी, यू हैव अ फुल टाइम जॉब. हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू टू, और हाउ डू यू मैनेज योर life, your health, your work, uh, everything together? आई थिंक इट जस्ट टेक्स प्लानिंग फॉर एनीथिंग डिफिकल्ट. जिसके लिए टाइम बनाना, इट जस्ट टेक्स प्लानिंग. मेरे को लगता है कि आई एम प्लान्ड बेटर दीज डेज. आई एम, मतलब सेम. अगर मान लो मेरे को सेम चीज़ आप पहले 6 महीने पहले बोलते कि इतनी सारी चीज़ें करनी है, सो आई वुड बी लाइक नहीं यार, ये नहीं हो सकता. बट क्योंकि अब हैबिट में आ गई है, राइट. मेरे को पता है मेरे को टिफिन में ये चीज़ें लेके जानी, टिफिन पैक हो जाएगा. टिफिन के बाद मुझे ये खाना क्या है, छोटा सा, मे बी सम सीड्स आई नीड टू हैव, राइट. आई कैन कैरी देम, आई कैरी देम. देर आर सर्टन टाइम्स की डिनर ऑफिस में करना पड़ता है, सो ट्राई टू टेक समथिंग अलॉन्ग विद यू. ठीक है, नहीं तो इडली तो हर जगह मिलती है, हैव इडली फॉर डिनर. सो इट इज जस्ट अबाउट लेटिंग थिंग्स गो, एंड प्रॉब्ली व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू. अपने लाइफस्टाइल के अराउंड चीजें डिजाइन करो ना, तभी आदतें पड़ेंगी. तुम बोलोगे यार नहीं, मेरे को तो क्या कहते हैं, शाम को 7 बजे एक प्रोटीन शेक ही पीना है जिसमें इतनी सारी बेरीज में डालूंगा, मैं ऑफिस में हूँ, मैं कैसे पीऊंगा? हाउ इज इट पॉसिबल? या तो मेरे को अपने किसी कैंटीन वाले को बोलना पड़ेगा, भैया प्लीज, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा. दैट दोज थिंग्स डोंट वर्क इन बैंगलोर, बाय द वे. I've tried that also. So yeah, it is difficult, but I'll say क्योंकि चीज़ें प्लान्ड थी, क्योंकि चीज़ों की आदत पड़ती गई धीरे धीरे, एंड आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट वेज टू ऑप्टिमाइज थिंग्स. तो अब मेरी चीज़ें ना ऑटोमेटिक चलती हैं कि टिफिन, जिस दिन ऑफिस जाना है उस दिन टिफिन पैक करूंगा, टिफिन में सारी चीज़ें पैक हो जाएंगी. जिस दिन ऑफिस नहीं जाना, उस दिन चीज़ें ऑलरेडी रेडी होती हैं इवनिंग तक की. And evening, after that, after coming in the evening, there are few batters that I already keep at home, make some dosas out of it and eat it. Basically making it very simple. Awesome. So basically साहिल ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि he made habits out of it, right? So I would like to explain why making habits are important, and like he used the word monotonous, why he used the word boring, why it is very, very interesting that he's used those words when he was trying something very interesting. It's because मतलब मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अगर इस कॉल पे 15 लोग हैं, तो पिछले 15 सारे 15 लोगों ने पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में हर रोज ब्रश करा होगा. यू नो, अगर लेट हो रहे तो उंगली से करोगे, टूथपेस्ट भूल जाओगे, टूथब्रश भूल जाओगे तो उंगली से करोगे, टूथपेस्ट नहीं होगा तो आसपास वाले से मांग के करेंगे. पर ब्रश करेंगे, जब तक ब्रश नहीं करेंगे तब तक मुंह नहीं खोलेंगे. अच्छा, अगर गलती से भी ब्रश नहीं करा तो मे बी मिंट खा लेंगे, च्युइंग गम खा लेंगे, बट वी डोंट वांट दैट स्मेल टू कम आउट ऑफ आवर माउथ. वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट ट्वाइस कि आज ब्रश नहीं करूं तो चलेगा क्या, आज ब्रश करूं, कल छोड़ दूंगा. वी डोंट डू दैट. हमें पता है ब्रश करना है, एंड वी नो वी वांट टू डू इट डेली. We don't think about it. Because we don't think about it, it doesn't take that space in our mind. Most of the things that are needed to be done are very small things. प्रॉब्लम का होता है जहां पर वो दिमाग में जगह घेरता है, तो ऐसा वो 5 मिनट का काम भी 1 घंटे का काम लगने लग जाता है. सो इफ यू मेक इट बोरिंग, सो बोरिंग, हाउ मेनी ऑफ यू वर एक्साइटेड टुडे कि आज ब्रश करने को मिलेगा, आई एम सो एक्साइटेड टू ब्रश माई टीथ, मजा ही आ जाएगा आज ब्रश करके. Who was how when were you excited the last time to brush your teeth? I can't believe any of you is ever excited to brush your teeth, because it is boring, and because it is monotonous, and because it is a part of your subconscious. It doesn't take time. हमारा समय नहीं घेरता है वो, and it becomes so automatic that it just comes to us. Sahil has been able to make his entire routine that way. वो अगर बाहर भी जा रहा होता है तो उसे पता होता है कि मस्ती करने वाला हूं मैं, पर कुछ चीजें वो प्लान करके जाता है. लाइक ही सेड कि बफे में भी जाएगा तो पहले वेजिटेबल्स खा लेगा, उसके बाद मीठा जा रहा है और फ्राइड जा रहा है और जो भी जा रहा है, बट दैट इज व्हाट वर्क्स फॉर हिम. इट डजंट वर्क फॉर एवरीवन, बट दैट वर्क्स फॉर साहिल. ही हैज बीन एबल टू फिगर दैट आउट. एंड दैट्स व्हाई हैबिट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द राइट डायरेक्शन. आपको पता होना चाहिए कि वो आपके लिए काम करता है. आज नहीं कर रहा तो 15 दिन बाद करेगा, पर वो आपके लिए काम करता है, और आप उसे लंबे टाइम तक फॉलो कर सको, ये जानते हुए कि आप उसे फॉलो क्यों कर रहे हो. किसी भी चीज को नहीं ब्रेक करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है.
ब्रश आप दो वजहों से हर रोज करते हो। एक तो इतने टाइम से कर रखा है, छोड़ ही नहीं सकते, हैबिट बन गया। दूसरा, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि व्हाई डू वी ब्रश आवर टीथ। सो व्हेन वी पुट टू प्लस टू टुगेदर, इट इट बिकम्स अ हैबिट। यू नो कि मैं इसे ब्रेक कर ही नहीं सकता। Sahil, I have the last question for you. You you are working on your health, right? You are working for half marathon, and you have a full time job. Uh, you have a full time wife also. So I wanted to know why. What are you doing here? मतलब हो गया transformation. Why do you want to impact more people? Why do you want to volunteer here? Sorry, I did mute myself. Yes. So yeah, uh, primary reason for me volunteering here is because this is something that has not been talked about uh, in so long, and इतनी ज़्यादा layers of complexity डाल दी गई है हेल्थ के ऊपर that I want to demystify it. मैं चाहता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज मैंने फील किया है खुद ने, मैं बाकी लोगों को हेल्प कर सकूं वो चीज़ फील करने में कि इतना मुश्किल नहीं है यार। इन चीज़ों को बेसिकली इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है सो दैट दे जस्ट कीप ऑन जूसिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ यू। दैट इज नॉट हाउ इट इज। आपके लिए कुछ सर्टन सेट ऑफ रूल्स वर्क करेंगे, सर्टन टाइम में आप वो चीज़ सीख जाओगे, फिर उसके बाद आप उसको जिंदगी भर फॉलो कर पाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इट इज दैट सिंपल। सो जस्ट So टू क्रिएट basically, द। you want to reach out to more people and tell them there's an easier way of doing Yes. things. You don't have to kill yourself just to be healthy. Because I And was the one who did that. I killed myself over the years. And it had such bad consequences. I was always in a cranky mood. You will not know what could flip me off. I was that person की भूख लगी है तो गुस्सा आ जाएगा, थका है तो गुस्सा आ जाएगा। आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर। अब दूसरों का गुस्सा आता है तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ यार। exactly. So abhi you're not getting that angry anymore. यस, नॉट एनी मोर। Anything else you want to share how it has impacted you, your family, your राइट। entire space of living as a whole? Correct, correct. So yeah, it did because since I was able to follow a lot of things and see a lot of results, probably the driving factor for me was Shivani, right? She did her own transformation. Migraine चला गया उसका यार, मतलब that is huge, and with very small changes. मतलब we had gone to all the different places. बोलते हैं ना, मन्नत मांगने के लिए 10 मंदिर जाते हैं। हमने हर क्या कहते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट पे गए होंगे हम। We had tried naturopathy, all the things, right? But it was really magical। ठीक है, जब उसका माइग्रेन गया, सो पोस्ट दैट जब इतना इम्पैक्ट लगा, आई ऑल्सो आस्क्ड माई पेरेंट्स टू डू दैट, राइट? एंड माई मदर्स बीपी मेडिसिन इज नाउ रिड्यूस टू हाफ। थायराइड मेडिकेशन जो डॉक्टर्स बोलते थे कि 75 अगर आप खाओगे तो किसी का कत्ल कर सकते हो, वो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। शी इज एज हैप्पी एज अ बर्ड दैट आई हैव सीन हर इन द पास्ट सेंचुरी, right? And there is like, and my father's पापा का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दैट इज व्हेन दिस टाइम व्हेन ही केम टू बैंगलोर, उनको स्लीप एपनिया डिटेक्ट हुआ था। प्राइमरली lot of things led to that sleep apnea है, and there was an enlarged prostate also. uh, so he also is able to almost reverse his sleep apnea. He's lost a lot of kgs, a lot of inches have been lost, thyroid medication कम हो रही है, and it's only been 4 months, and I'm just hoping that उनकी सारी दवाइयाँ छूट जाएं। Like one can hope, but yeah, it's the right direction and right kind of impact. Like अगर आप एक खुशी खुद फील करते हो, राइट, इट इज वन इम्पैक्ट, बट अपने आसपास सबको अगर आप you see that impact all around you, right? And that too, all of that naturally. You're not taking any those fat diets, कोई supplements नहीं ले रहे हो, कोई weight loss shakes नहीं ले रहे हो आप। ठीक है, कोई ऐसा नहीं बोला जा रहा आपको कि यार ये वाली चीज़ आपको खानी ही है, या फिर ये चीज़ ऐसे नहीं चल सकती। देर आर वेज ऑफ वर्किंग आउट थिंग्स। अच्छा ये नहीं, इसके जगह ये करेंगे। पर्टिकुलर थिंग्स आपके लिए नहीं वर्क कर रही, आपके शेड्यूल में नहीं वर्क कर रही, ऐसा करके देखते हैं। सो इट्स अ चेंज इन माई यूनिवर्स, आई से। इट्स अ ह्यूज चेंज। Started with impacting your own family.
And I know a lot more people have reached out to you and they're getting amazing results. And what you're doing, Sahil, is God's work, I would say. You're creating waves. You're helping people uh, see the best of themselves, and it all started with you. Kudos on being here. I'm really extremely proud of you. Thanks for मतलब having what you have done, people only dream about doing it. Coming from a place जहाँ पर steroids लेने पड़ते थे, पड़ सकते थे joint pain के लिए, to a place where you are preparing for a half marathon. Last weekend you ran 16 kilometers, right? just before your call. And I didn't catch a breath while speaking. Absolutely. अगर आपने नहीं बताया होता तो there's no chance for me to know that you're just coming running 16 kilometers. I think no one here will be able to tell that you ran 16 kilometers, and you are glowing, your skin is glowing, and amazing job, Sahil, and I'm really proud of you. Thanks a Uh, lot. Thank And you thanks for for being walking here. me through for all of that. And actually, I wanted to take this opportunity to also thank you for uh, probably holding my hand and for probably like there were late night calls that used to happen. भाई दानव जाग गया क्या करना है कचौरी खा लूं क्या dealing with that and saying कि सही हो जाएगा नहीं have some this thing उसके बाद भी मन कर रहा है तो खा ले just holding on to things and चीजें हो रही हैं to bringing me to a point कि occasionally कभी कुछ करने का मन कर रहा है तो कर लो it will not harm you and like it's a very magical journey that I'm on. Thanks for having me here. Absolutely, absolutely, Sahil. Thank you for being here. So very proud of you, and hopefully see you very soon, very again. Sure. Bye bye. Thank you. Good luck. Thank you guys. Bye.